Hello, good morning dear student of class 11. So this is our first class regarding to the questions from chapter number 5, work, energy and power. As you all know, we have already discussed theoretical part of this chapter in the class. So we have to discuss only questions in this class. There are all types of questions. Okay. So this worksheet contains 5 parts. It is divided into 5 subparts. First part is work done by constant and variable force regarding to work done. Second one is kinetic energy and work energy theorem. Third one is potential energy and conservation of energy. Fourth one is conservative force and non-conservative force. Fifth one is motion in a vertical plane. And sixth one is elastic and inelastic collision in 1 or 2 dimensions. There are 6 parts in this worksheet. Okay. So we have to complete first part only. So this is our first part. The topic is, today's topic is work done by constant and variable force. As you all know, we have already discussed theory regarding work done. Formula for work done by constant force is force into displacement and cause of angle between force and displacement. If work done is by variable force, then there are 2 limits of position x1 to x2, force into displacement. This is the integral part. ओके, इंटीग्रेट करके निकालेंगे यहाँ से जहाँ भी होगा. ठीक, एक बार और थीटा के रिगार्डिंग हमारे वर्क की वैल्यू 10 होगी. अगर हमारा थीटा की वैल्यू 0 और थीटा इज लेस देन 90 है तो वर्क आपका होगा पॉजिटिव. इफ थीटा इज greater than 90, if theta is greater than 90 and less than equal to 180, then वर्क आपका होगा नेगेटिव. और अगर थीटा हमारा 90 होगा, थीटा इक्वल टू 90, तो वर्क डन हमारा होगा 0. ये हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी. ओके, जीरो वर्क डन के कई सारे एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए, आप लोग से देख सकते हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं. So today's first question is a force of 10 Newton acts on a body. Okay, force is given 10 Newton. So please note down the value of force. Force equal to 10 Newton. Make an angle 60 degree, that is theta equal to 60 degree, with the direction of its displacement of 5 meters. Displacement is given in this problem, that is d equal to 5 meters. Okay, so we should use this formula. Work done equal to force into displacement, cos between force and displacement. 10, 5, cos of 60. ऑलरेडी हमने डिस्कस किए क्लास स्टार्ट होने से पहले, अपना सिलेबस स्टार्ट करने से पहले बेसिक मैथमेटिक्स, उसमें मैं साइन कॉस और टेन की जो बेसिक मैथमेटिक्स में वैल्यूज होती है वो सब डिस्कस किए. ओके, एक कर्व के जरिए डिस्कस किए. साइन का कर्व ऐसे चलता है, तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है. यहाँ बात होगी 60 डिग्री, 1/2 आंसर होगा. ठीक है, तो 10 into 5 into 1/2 बन जा 25 किया, then it will be 5 into 5 25 जूल. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है. इजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. अगर आपको फार्मूले बताएं, बेसिक मैथमेटिक्स का कमांड है, साइन और कोस की वैल्यूज बताएं आप. ओके, आप नोट्स को सामने रखिएगा, सारी वैल्यूज को नोट्स को लिखी हुई है. Second one is a force acting perpendicular to the displacement of a body in the bulk. With very simple question is force into displacement and theta is given 90 perpendicular to the displacement, then it should be cos 90. No, value of cos 90, cos 90 is equal to 0, so it will be force into displacement into 0, that is 0. तो इस केस में वर्क आपका 0. The SI unit of work, वर्क की SI यूनिट क्या हम डिस्कस कर चुके हैं, जूल. ओके, न्यूटन इनटू मीटर जो होता है उसको जूल के बराबर में ऐसा होता है. फोर्स इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से निकल के आएगा न्यूटन इनटू मीटर, इसको जूल कहते हैं. याद रखें, न्यूटन इनटू मीटर को यूनिट नहीं कह सकते. दिस इज द नॉट द यूनिट ऑफ वर्क डन. ये हमारी टॉर्क की यूनिट है, इसकी यूनिट है टॉर्क की. वर्क डन की यूनिट क्या है, जूल. सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग जब आप जूल कंप्लीट लिखेंगे स्मॉल के बनाएंगे और सिंपल के कैपिटल के बनाएंगे.
ठीक है, तो न्यूटन मीटर नहीं हो सकती, हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्स के जरिए जो वर्क होगा, ठीक है, कह रहा है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो वर्क डन क्या है, वेरिएबल फोर्स के जरिए हो या कांस्टेंट फोर्स के जरिए हो, इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डॉट प्रोडक्ट होता है, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो ये स्केलर क्वांटिटी, ओके। ये क्वांटिटी हम और डिस्कस किया करेंगे इन फ्यूचर क्लासेस में, आगे क्लासेस में। फोर्स सॉरी एट डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, ये टॉर्क हुआ करेगा, ये दो क्वांटिटी होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ करेगी क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वर्क चाहे जैसे भी हो, आपको स्केलर क्वांटिटी, ओके, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब वेरिएबल फोर्स इंटीग्रेशन से होगी, जबकि वेरिएबल फोर्स का मतलब है इंटीग्रेशन और ग्राफ, ओके। कांस्टेंट फोर्स में हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं वही करेंगे कांस्टेंट फोर्स के लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और क्वांटिटी है, फोर्स इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कांस्टेंट, बट व्हेनेवर फोर्स इज वेरिएबल, तो वेरिएबल फोर्स के लिए आप इंटीग्रेशन का मेथड लगाएंगे, सेकंड आप ग्राफ यूज करेंगे, ठीक। अब यहां देखते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, अब वेरिएबल फोर्स कैसा फोर्स, वेरिएबल फोर्स क्लास में डिस्कस किया है हमने, वेरिएबल फोर्स दिया F इक्वल टू kx, कहाँ से, k गिवन है, k इज द कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ k इज गिवन 4 न्यूटन पर मीटर, k इज द फोर्स कांस्टेंट, ओके। तो प्लीज सी दिस क्वेश्चन, फोर्स इज गिवन kx and force constant is also given in this question, that is 4 Newton per meter, and position from x equal to 0 to x equal to 2 meter। इंटीग्रेशन में डिस्कस किया है, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। इंटीग्रेशन का एक ही बेसिक फार्मूला है x to the power n, and it can be number, so it will be x n plus 1 upon n plus 1। जैसे अगर x का पावर आपका 5 है, लिमिट दे दिया है 0 से 5, तो इट विल बी x की पावर 6 अपॉन 6, लिमिट यूज करेंगे 0 से 5। ये मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं, इंटीग्रेशन का बेसिक समझाया है, ओके। तो यूज करते हैं, वर्क डन होता है वेरिएबल फोर्स से x1 टू x2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है वैल्यू x1 is given 0, x2 is given 2, force is given kx and this is ये कांस्टेंट है, कभी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डिफरेंशिएशन होता है क्योंकि आपका बाहर आ जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0 to 2 dx, x की पावर 1 में इंटीग्रेट करेंगे, इट विल बी x स्क्वायर यानी पावर 2 अपॉन 2 0 to k और 2 भी बाहर आ जाएगा। लिमिट रखने का तरीका x की जगह अपर वैल्यू यानी 2 का स्क्वायर, x की जगह लोअर वैल्यू 0 का स्क्वायर, पहले 2 की 1 अपॉन 2 k 2 जा 4 माइनस 3 2 1 जा 2 का, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो तो w इक्वल टू आ जाएगा k की वैल्यू को गिवन है 4, तो 4 into 2 k 2, 8 जूल should be the work done, it means option B should be correct। क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने अभी 11th स्टार्ट किया है, बेसिक स्टार्ट किया है, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की कांस्टेंट क्रैक कर लीजिए, इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें हर एक क्वेश्चन को, क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 6, फिर आप क्या डिस्कस कर चुके हैं ऑन अ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो दिस इज योर फोर्स एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट dx, वर्क डन बाय द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इक्वल, वर्क डन हमने निकाला, बता रहा था कि वर्क डन जो यहाँ होगा वो एरिया अंडर कर, क्या होगा, एरिया अंडर कर, क्लास में क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो स्लोप तो नहीं हो सकता,
स्लोप क्या हो जाएगा हमारा फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ये तो वर्क का फॉर्मूला होता नहीं है। एरिया अंडर कर्व, इंटरसेप्ट भी लिखूंगा, ठीक है। एरिया अंडर कर्व डिस्कस किए थे क्लास में। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब भी आप करेंगे सपोज करो ये आपका फोर्स है, कल फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही कर सकता होगा। यूनिट इसी के नाम बता दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ लिफ्ट ऑफ मास। लिफ्ट वाला क्वेश्चन, कितना मास। वैसे लिफ्ट को हम डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। लिफ्ट को डिस्कस किया था वहाँ पर। अगर लिफ्ट वेरिएबल एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है, एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड आ रही है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, सारी चीज़ें हो जाएगा आपका 1000 kg। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट या एज इक्वल्स टू 10 कांस्टेंट वैल्यू, इट मींस एक्सीलरेशन आपका जीरो। द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी इज, वर्क कितना किया जाएगा, फोर्स का फार्मूला, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू स्पीड। अब फोर्स यहाँ वेट के बराबर है mg, जो डाउनवर्ड लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा h के बराबर है। एंड 1000 जी आपका 10 को करो, 10 गिवन है, h आपका 10, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 1 इंटू 10 टू दी पावर 5। ऑप्शन सी करेक्ट है, तो होता है ऑप्शन बी आपका। इस तरीके के हल्के हल्के क्वेश्चन है आपके। अगला है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन अ रफ सरफेस एंड कमिंग टू रेस्ट। कह रहा है फ्रिक्शन के जरिए जो वर्क होता है वो कैसा होता है। मैंने तीनों एग्जांपल लिखा है, पॉजिटिव वर्क डन के, जीरो वर्क डन के, नेगेटिव वर्क डन के। पहचान क्या है, पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा, थीटा आपका होगा 0 या फिर 90 से। थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ थीटा एग्जैक्टली 90 होगा। ठीक है, ये एग्जांपल हमने लिखे थे, इक्वेशन वगैरह। यहाँ थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 होगा, लेस देन इक्वल टू 180 होगा। ये कर लेते हैं, ठीक। अब बात करेंगे फ्रिक्शन, डिस्कस कर चुके हैं। अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगा कि एक्सीलरेशन इस तरफ लग रहा है कि एंगल एग्जैक्टली 180 होगा, और cos 180 की वैल्यू होती है हमारी। इट मींस इसके जरिए जो फोर्स होगा आपका इस कैटेगरी में फॉल करेगा। इस कैटेगरी में फॉल करने का मतलब ये कि वर्क होगा नेगेटिव, ठीक है। कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहिए, कभी भी किसी क्वेश्चन या क्वेश्चन के आंसर्स को याद करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, अदरवाइज बहुत नुकसान उठाएंगे आप फिजिक्स में। आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसी वजह से मैंने इस वर्कशीट को, इससे पहले जो वर्कशीट दी है या आने वाले क्वेश्चंस बनाऊंगा उसको मैं पार्ट्स में, सब पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, जिससे आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ग्रैब करें। कभी भी फिजिक्स में क्वेश्चंस आप याद नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है ये जरूर, बस वही नॉलेज आपकी। ठीक हो गया, समझ आ गया कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। यहाँ इससे पहले क्वेश्चन किया था तो इसमें फॉल कर रहा था 0 वर्क तक। इसका हमने सबसे पहले क्वेश्चन किया था पॉजिटिव वर्क तक, ठीक। तीनों तरीके को स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। ऑप्शंस तो आपको बताएंगे। A and R, true and R is the correct explanation. R is not correct explanation. A is true but R is false. False. तो क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन 9 assertion है the work done by a force on a body moving in a circle with uniform speed. ये एग्जांपल में भी लिखा है uniform speed is always zero, ठीक है। बाकी ये हो गई जीरो होता तो force into displacement into cos theta. Whenever we discuss uniform vector motion, तो force होता है इस तरफ, towards the center, displacement होता है इधर, और angle होता है, ठीक है। पहले स्पीड कांस्टेंट होती है, सॉरी। तो अब आगे देखिए, the centrifugal force, this force acting on the body always directed towards the center की तरफ, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ले लीजिए या फिर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर ले लीजिए, बात एक ही, ठीक है। इसीलिए जीरो होता है, करेक्ट। तो बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्रेशन आल्सो करेक्ट। ये शुड बी द आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी नेगेटिव। हाँ, हो सकता है,
वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, अभी हुआ है। वर्क डन इज नेगेटिव होगा व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 90। बात ठीक है, 90 से क्या होगा, बड़ा। 90 से जब भी बड़ा होगा तो बताया फोर्स जो एंगल होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस कैटेगरी में आएगा तो वर्क आपका नेगेटिव होगा। फ्लेक्सिबल वाला अभी करेगा। बोथ आर करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आल्सो करेक्ट, दोनों से चलेगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। And define work done by a constant force, write this formula. Work done by a constant force, okay? Whenever a force applied on a body and the body is displaced in any angle, acute angle or maybe obtuse angle, then the work is defined as square product of the force and displacement, or the product between product of force displacement and cause of angle between force and displacement। दोनों डेफिनेशन है, आप यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। फार्मूला तो लिख दिया हो गया। राइट द डायमेंशन फार्मूला फॉर वर्क, बड़ा जरूरी है ये डायमेंशन के लिहाज से लेवल के लिए। देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का होता है हमारा n l p -2, डिस्प्लेसमेंट का l होता है तो इट विल बी n l स्क्वायर p -2। ओके, दो क्वेश्चन हो गए आपके, इजी क्वेश्चन थे। अच्छा क्वेश्चन तो एक आया है, देखते हैं कितने बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, वेक्टर यूज होगा। वेक्टर जो है आपका फिजिक्स का दिल है, हार्ट ऑफ द फिजिक्स। अगर आपको वेक्टर आता है तो आपकी काफ़ी मुसीबतें आसान होती चली जाएंगी 11th में 12th में आपको, और कॉन्सेप्ट बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टराइजेशन वगैरह। वही आपका फोर्स कितना मीटर डिस्प्लेस अ बॉडी कितने मीटर से, कैलकुलेट द वर्क डन करते हैं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू ऑफ फोर्स गिवन 3i कैप 4j कैप डॉट प्रोडक्ट 2i कैप 3j कैप। स्केलर प्रोडक्ट के रूल दोबारा सुन लीजिए। i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, यानी ये सेल्फ प्रोडक्ट स्व गुणा होता है। करते हैं आगे सॉल्व। 3 2 6, i का i से 1, 4 3 12, j का j से 1, 6 और 12 18 रूल शुड बी आंसर। करेक्ट हो गया ऑप्शन तो इसमें 18 रूल आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर। एक और आपका वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पता कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो है वेरिएबल मौजूद है फोर्स। नोट कर लेते हैं। F is given to x square फाइंड द वर्क डन, थोड़ी सी दे दी है x = 1 तो x = 3। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन वाला मेथड दोबारा लगेगा, x1 to x2 फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लोअर लिमिट इज गिवन 1, अपर लिमिट इज गिवन 3, फोर्स इज गिवन 2x² एंड dx। 2x² एंड dx। इंटीग्रेशन का मेथड बताइए, आपको कांस्टेंट का होगा नहीं तो कांस्टेंट लिख दिया आगे 1 से 3x² dx। पावर इंक्रीज होती है तो इट विल बी x की पावर 3/3 1 to 3 तो 2/3 कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा, पहले x इंटीग्रेशन करेंगे हम कितना 3 का पावर 3 -1 का पावर, और इसी कर देंगे 2/3 3 का पावर 3 27 1 का पावर 3 1 यानी कि 2 × 26/3 52/3 आ गया हमारा। इजी लगेगा आपको अगर इंटीग्रेशन पे पकड़ है, एंगल्स पे पकड़ है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह मैथमेटिक्स सही है तो कोई भी टफ नहीं लगेगा। पर आपकी बेसिक मैथमेटिक्स सही नहीं है, इंटीग्रेशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो आप पे फिजिक्स नहीं होगी। आपको फिजिक्स और हिस्ट्री में ज़्यादा डिफरेंस लगेगा नहीं, आप एलिमेंट्रीज को पढ़ सकते हैं, आपको कर सकते हैं। बस बेसिक मैथमेटिक्स बहुत जरूरी। देखते हैं
16 है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, तो मास गिवन है आपका 2 kg पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, 20 न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल 30 डिग्री at to the horizontal over a distance of 10 meter, distance and displacement also on a frictionless surface, friction नहीं है, calculate the work done by the applied force and gravity, दोनों में हमें वर्क करना है, दो वर्क करना है, दो वर्क करना है, इसका मास कितना करना है, 2 kg, इसलिए फोर्स कर रहा है हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है आपका कंपोनेंट करना सिखाया था, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, देयर शुड बी टू कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स। एक हमारा अपवर्ड होगा 20 sin 30, एक इधर हो जाएगा 20 cos 30, बट डिस्प्लेसमेंट केवल इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा कितना 10 ऊपर कितना डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऊपर बिल्कुल नहीं है। दोनों वर्क निकालते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल निकाल लेते हैं, वर्क पर पहला फोर्स यानी इस तरफ, तो फोर्स हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos 30, फोर्स इज गिवन 20, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन 10 cos 30 रूट 3 बाई 2, उसे हटाओ 10 10 10 या 100 रूट 3, तो ये आपका क्या है जो फोर्स के जरिए वर्क हो रहा है, ठीक है। सेकंड को कह रहा है ग्रेविटी, ग्रेविटी कब रोल करती है, जब भी बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ ना अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड, तो वर्क डन जो बाय ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी को 0 हो जाएगा, कोई वर्क ग्रेविटी नहीं करेगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज कंप्लीट हो गया आपका ये सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, explain how the work done by a variable force is calculated using force, distance, fraction calculation। जबकि variable force सपोज करो पहले force constant था, फिर सॉरी पहले एरिया में इंक्रीज हो रहा था, तो कांस्टेंट था, फिर डिक्रीज हो रहा था, तो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट, तो एरिया अंडर कर्व से निकालते हैं और लिखा हुआ है, अब जाके लिख सकते हैं कि whenever a force is variable, it means it can increase, decrease or remains constant, then there should be a graph between force and displacement, and the area under curve for that graph of force and displacement curve is known as work by that variable force, ठीक है। इंटीग्रेशन से भी कर देते हैं इसको लिमिट के साथ, ठीक हो गया। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, डिटेल काम कर लेना। क्वेश्चन नंबर 80 के थ्योरेटिकल देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 आप इनको नोट में सॉल्व कर लेंगे, कहीं इशू हो तो अ पार्टिकल मूविंग अराउंड द एक्स एक्सिस, फोर्स के ऊपर 3x स्क्वायर 2x न्यूटन में, the work done in displacing the particle from this into this, फिर वही गिवन है 0 to 2 meter, the work done by the force moving the particle from 2 meter to 0 meter, अपोजिट दूसरी तरफ मूव रहा है तब से आपको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ के लिए, ठीक है। यानी पहला हमारा जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा कहाँ से 0 से 2 मीटर, फोर्स गिवन है 3x स्क्वायर 2x, इंटीग्रेशन कई बार समझाते हैं, थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, ओके। यदि ऐसा ही एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट वही 0 से 2, ऐसा ही एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट वही 0 से 2, 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, वैल्यू लग दीजिए, एक्स की जगह पहले अपर लिमिट 2 की पावर 3 माइनस अपर लिमिट 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 3 दैट इज 8 माइनस 4, यहाँ हो जाएगा 4। ये तो हमारा कम से कम हो गया 0 से 2 मीटर तक इस डायरेक्शन। सेकेंड पार्ट में कह रहा है अपोजिट निकालो आप, अब देखो लिमिट कैसे चेंज होगी, अब वो कह रहा है कहाँ से निकालना है 2 मीटर से 0 मीटर, शायद वापस आ जाएगा, फार्मूला वही रहेगा आपका 3x स्क्वायर 2x
कोई ये ऐसा ही एक्स की पावर इंक्रीज होगी, लिमिट कहाँ से इस बात की, तो ऐसा ही एक्स की पावर 2 अपॉन लिमिट कहाँ से 3 से 3 लिमिट हमेशा कॉन्स्टेंट की होती है। तो पहले अपन 0 की पावर 2 की पावर 0 की पावर 2 की पावर, तो क्या हो जाएगा आपके यहाँ से माइनस का 8 और प्लस का 4, तो हो जाएगा -4। ठीक, ये बातें दोनों इंटीग्रेशन पे, डिफरेंशिएशन पे अगर आपको पकड़ है तो आपकी फिजिक्स पे, कॉन्सेप्ट पे, बेसिक मैथमेटिक्स पे पकड़ है। ठीक है, अदरवाइज आप बस थ्योरी लिख रहे हैं और थ्योरी याद कर रहे हैं और खुश हैं, उगाते हैं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर प्रॉब्लम हो आप उससे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आ जाइए ग्राफ पे करें। पहले पढ़ लीजिए, ये कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड डायमेंशंस ऑफ पोर्शन दैट फॉलो अबाउट मूविंग along a straight line under the action of a variable force, the variation of force, कोई फोर्स से डिस्प्लेसमेंट कर दिया, बहुत ज़्यादा उसको पढ़ेंगे तब भी बहुत समझ आएगा। क्वेश्चन प्राप्त करते ये है कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2 न्यूटन से, कहाँ तक 2 मीटर। हाँ, डिटेल ये पड़ेगा। वर्क डन बाय द फोर्स 0 to 2 मीटर, कह रहा है 0 to 2 मीटर की डिस्टेंस पे वर्क डन, यहाँ से यहाँ तक आप बताइए कोई एरिया है नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 0, यानी इस रेंज में वर्क डन कितना हो जाएगा आपका, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया 0। वर्क डन बाय द फोर्स 2 to 4 मीटर, 2 से 4 मीटर, कहाँ से कहाँ पे निकालना है, x = 2 से x = 4 मीटर, तो इसका p है, यानी ये रीजन हुआ हमारा। तो अगर हम इसको नाम देते A B C D, इसको मान लें हम लेंथ, तो इसको मान लें K, तो रेक्टेंगल हो जाएगा आपका सीधा सीधा। ठीक है, तो वर्क कितना हो जाएगा L × B, एरिया अंडर का लेंथ कितनी गिवन है आपको 2, यहाँ 10 मीटर, 0 से 10 की लेंथ। ब्रेथ कितनी है 2 से 4, यानी 4 - 10 × 2 दैट इज 22। दूसरा ऑप्शन हो गया है। ग्राफ आता तो चुटकी में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज आप चुटकी बजाते रहिए, क्वेश्चन नहीं होगा, ग्राफ नहीं करना। तो सेकंड ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 जरा देख लीजिए, कह रहा है वर्क डन कहाँ से, x = 4 से x = 6 था, तो 4 से 6 वापस आओ ग्राफ पर, देखो ये 4 से 6 कहाँ से 4 से 6 तक, तो ये बनना है कुछ आपका 4 से 6। मैथ वाले इसको ट्रायंगल कहते हैं, तो फिजिक्स वालों को इसको ट्रायंगल करना पड़ेगा। इसकी हाइट है, इसकी विड्थ, तो इस बार एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 राइट ट्रायंगल इसको, ठीक है, 1/2 b एच वही है आपका कहाँ 0 से 10। फिर क्या है आपकी 6 से 4 तक, तो 6 - 1/2 10 6 - 4 दैट इज 2 से 2 5 और नंबर का एरिया आपका 10। एक और कुछ रखने लायक आंसर आ गया। अगर ग्राफ आता है तो आप तकरीबन 30 मिनट का काम 3 सेकंड में भी कर सकते हैं, सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। कुछ बेसिक फार्मूले याद रखने, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लास्ट एरिया ऑफ ट्रापेज़, इतना आता है तो आप कर जाएंगे, अदरवाइज हम कर पाएंगे और आप याद करेंगे। और फाइनली फिजिक्स में याद करने से द वर्क डन बाय द फोर्स ओवर द एंटायर डिस्प्लेसमेंट, टोटल में कितना वर्क होगा, तो आप नोट कर लेना कितना था हमारा, जो भी है सारे वर्क ऐड करके आंसर। तो चाहो आप ट्रापेज़ियम से निकाल दो, टोटल वर्क डन निकालना है, इसी शेप को ट्रापेज़ियम से इसको क्या कहते हैं, ट्रापेज़ियम फार्मूला क्या होता है, अरे देख लेते हैं हम A B C D, ये दो पैरेलल साइड है L1 और L2, इनके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, सीधा सीधा डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ ट्रापेज़ियम का केंद्र जितनी क्या आपको बताइए, अच्छे
करते हैं आप, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2। अच्छे बच्चे, अब आपको निकालना है L1, कहाँ से 4 से कहाँ तक है 2 तक, तो ये हो जाएगी 4 माइनस 2, दैट इज 2। L2 कहाँ पर है 6 से कहाँ तक है 2 तक, तो ये हो जाएगी 6 माइनस 2, निकालने का तरीका 6 माइनस 2 दैट इज 4। ये बताओ 10 माइनस 0 दैट इज 10, तो इसे हटा दो साथ, तो 2 और 4 6 और 5, 6 5 का 30, यहाँ से भी 30 भी आएगा। आप समझ के निकाल सकते हैं। ओवरऑल क्वेश्चन हो चुके हैं वर्ग के, आई थिंक ठीक है, वर्ग के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब भी ऑनलाइन क्लास होगा सेकंड पार्ट काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।